एपिसोड की शुरुआत करने से पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। मेरी टीम बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रही है टू मेक दिस पॉडकास्ट चैनल अ सक्सेसफुल वन। नॉट जस्ट दिस पॉडकास्ट चैनल बट ऑल्सो कि आपको एक वैल्यू ड्रिवन कंटेंट मिले। क्या आप चाहते हो दैट वी गिव यू every single day a value added content? Then why are you waiting? Subscribe me right now and share this to someone who may need it और उनकी लाइफ 1% भी बेटर हो तो I am really happy and my team will be really happy because we have made it to your life. As I said in my previous episode, this episode is all about surprises, wars, and at the end, a special element where we talk about दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य, द बर्मुडा ट्रायंगल। चलो, लेट्स नॉट स्ट्रेच इट आउट, वॉच इट राइट नाउ। एंजॉय द शो। You know, when you said ke, Bollywood, yeah, you said that I have been inspired by a series, right? कि मैंने एक सीरियल देख के I got inspired. So media कितना important role play करता है. Exactly. And you are actually being a part of media only because as a content creator also, it's a circle which you're coming back. Very true. So from this podcast also, हमारा यही vision है कि we bring such guests जिन्होंने life में बहुत हसल किया है and today they have made it big, right? So see podcasting, when I used to hear this term 2-3 साल पहले मुझे लगता podcast, but through creators or through podcasters you make a lot of difference. I am a podcaster. मुझे मालूम है कि people are inspired by so many people's life. Right. तो अभी even though whatever जो भी मैं हूँ आज, even when I drive to office every day I get 1 hour traffic मुलुंड से पवई, अभी भी मैं पॉडकास्ट ही सुनता हूँ. 1 घंटे में you learn so much. पहले कैसे गाना सुनता था, अभी तो एकदम क्लियर है कि मेरे 2 ही इंटरेस्ट है. एक तो पॉडकास्ट सुनना, दूसरा घोस्ट स्टोरीज. आई बिलीव इन पैरानॉर्मल एंड वो मेरा अलग, दैट इज माय हॉबी अगेन, तो या तो शाम को आने के टाइम सुबह पॉडकास्ट सुनता हूँ, शाम को भूतों की स्टोरी सुनता हूँ. दैट्स आई यूज्ड टू डू अ शो ऑन इंस्टाग्राम कॉल्ड घोस्ट स्टोरीज एवरी फ्राइडे नाइट. उसके ऑडियंस बहुत थे, 400-500 लोग तो लाइव पे आ ही जाते थे. इवन टुडे पीपल मैसेज, अरे सर आपको मिस कर रहे हो वहाँ पे. तो थोड़ा बंद कर दिया बिकॉज व्हेन यू उस पे छेड़ते हैं ना, लॉट ऑफ नेगेटिव्स हैपन इन योर लाइफ. आई हैव एक्सपीरियंस्ड. पहले मुझे जब मैं सुनता था गौरव तिवारी एंड जो भी पैरानॉर्मल, मुझे लगता है यार ये ऐसे कैसे बोल रहे. व्हेन आई एक्सपीरियंस्ड कपल ऑफ टाइम, सो इट इज़ एन इंडिकेशन सेइंग कि भैया रुक, बहुत ज़्यादा हमारी दुनिया में मत आ करके. सो शाम को मैं वो सुनता हूँ अभी भी. So अभी वो शो स्टॉल किया है. I'll start again because बीच में स्टॉल करना पड़ता हो. When you do a series, suddenly you have to break because आप नेगेटिव जोन में आते हो. अच्छा, it gets into you. And then you have to break. फिर 1-2 महीने के बाद again 1-2 एपिसोड करके. So that's what happens with all the paranormal जो करते हैं ना. Right. Wow. It's a different world, As I said, superpower, if you believe in positive, there is also negative energy. True. So ये सारी चीज़ें हैं. So that is how the media plays a role. Coming back to that question, thanks to that Fauji, thanks to शाहरुख जो है, अभी जैसे उरी मूवी हुई या I was going to ask you, I have 2 movies which are very favorite, like super favorite. One is Ghazi Attack and second is Rang De Basanti. Correct. And it plays a real important role because वो movie सिर्फ एक message नहीं दे रही है towards patriotic, but it is a message towards how a character can be built. Exactly. Right? And how as a person, as your attitude, your character. And the one thing which I actually loved about is the discipline. So my question to you is like, discipline, because it is said, right, when you're coming from the Indian force, I mean, Air Force ho, Army ho, ya Navy ho, you should be super disciplined. You should have that, charismatic character only ke people are inspired by you. True. So, how did you get that? Like, how did you build that? Yeah, so talking about discipline ना, so right from राजा महाराजाओं के टाइम से देखा होगा कि if you have तभी जो भी सेना, जो भी जिसके भी सेना है, तो उनका जो नींव होता है, that core is discipline. You can't run a फौज without discipline. तो जो discipline is genetically, फौज का जो जीन्स होता है ना, दैट इज़ वाई
कोई भी हो, मेरे जैसा बंदा जो आई हैव टोल्ड माय बैकग्राउंड, अगर मैं वहाँ से अगर एकेडमी में चाहता हूँ, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ऑल दी एकेडमीज, NDA, INA, एयरफोर्स एकेडमी, या जो हमारे सेलर्स और जवान को जो ट्रेन करता है, उसकी बुनियाद डिसिप्लिन पे होती है, सो व्हेन आई टॉक अबाउट डिसिप्लिन, राइट फ्रॉम योर हाउ द डे स्टार्ट्स फॉर यू, मतलब इंजीनियरिंग कॉलेज में लास्ट ईयर हम 11 बजे सो के उठते थे, फाइनल ईयर यू आर द बॉस कॉलेज का ना, स्टूडेंट टाइप्स, एंड देन इमेजिन फर्स्ट डे जब एकेडमी में गए, 4:30 दे मेक यू टू गेट अप, एंड वो बोलते हैं ना भूतों के इसमें काल में सुबह का, एंड देन यू विल रियलाइज कि साला सुबह क्यों उठा रहा है करके, एंड वहाँ से जो चालू होता है आपका जो ब्रेकफास्ट का टाइमिंग, सब 7 मिनट 8 मिनट का डिफाइंड टाइम होता है, नहाने का टाइमिंग, देयर इज़ अ टाइमिंग इन एकेडमीज, एंड दे मेक यू डिसिप्लिन डिसिप्लिन डिसिप्लिन। आपसे 6 महीना जो सीनियर होगा वो आपका बॉस होगा बंदा, वो आपको मुर्गा बनाएगा। जब हम लोग तो कैसे ग्रेजुएट एंट्री गए थे इंजीनियरिंग, और जो एकेडमी में 12वीं के बाद वाले बच्चे जो मैं पहले मिस हो गया, वो लोग आपसे सीनियर होंगे वहाँ पे एकेडमी में। इमेजिन यू आर लाइक व्हाट 21 22 इंजीनियरिंग के बाद, और वो बच्चे होंगे 16-17 साल के, 17 12वीं के बाद वाले, वो लोग आपको पनिशमेंट दे रहा है, तो आपके ईगो को इतना हर्ट होगा ना कि इंजीनियरिंग 4th ईयर और ये 1st ईयर के बच्चे इसको तो चीर फाड़ देते करके ना कॉलेज में, वो लोग आपको पनिशमेंट दे रहा है। सो आपकी ईगो को किल करते हैं वो लोग। सो ईगो, व्हेन ईगो गेट्स किल्ड, तो डिसिप्लिन सस्टेन, बिकॉज दैट इज द फौज का एनार्की। मेरे से 2 दिन भी सीनियर होगा कोई, ही बिकम सीनियर टू मी, सर बोलते हैं हम उसको ना। इवन आज भी व्हेन व्हेन इवन टुडे, अभी तो मैं नेवी छोड़ के मच ऑफ टाइम, बट मुझे एक फेलो फौजी मिल गया, कोई भी, सबसे फर्स्ट थिंग व्हाट वी आस्क देम इज कौन सा बैच का है करके ना, आर्मी नेवी एयरफोर्स कोई भी हो, सर कौन से बैच के हो करके, तो पहले वी ओनली से कि सर कौन से बैच, तो वो बोलेगा कि मैं 98 बैच का हूँ, तो देन ही बिकम सीनियर, तो आई एड्रेस हिम सर ऑटोमेटिकली। वो जूनियर होगा तो ही विल एड्रेस मी, ही और शी विल एड्रेस मी सर। सो दैट व्हाई दैट हैपेंड, बिकॉज ऑफ द कोर ऑफ दैट डिसिप्लिन, व्हाई इट इज नीडेड। फॉर एग्जाम्पल 1999 का कारगिल वॉर, इफ यू नो द कारगिल वॉर, पाकिस्तान ऊपर बैठी थी, दे हैड ऑक्यूपाइड दैट पोजिशन, एंड बाय द टाइम वी रियलाइज कि वो लोग ऑलरेडी आ चुके हैं, इट वॉज टू लेट, सो इट वॉज टू लेट इन इफ यू नो द हिस्ट्री ऑफ कारगिल वॉर। तो कारगिल वॉर में कैसे होता है, वो जो जगह है कारगिल के, बटा लेक एंड द्रास एंड ऑल, इट्स हेवी विंटर्स जब होता है, तो देयर इज एन अनरिटर्न ट्रीटी कि लास्ट पोस्ट इंडिया का इधर है, पाकिस्तान का इधर है, बीच का जो लैंड है नोबडी विल कम। जैसी स्नो आना चालू होगा, पाकिस्तान विल गो बैक, हम खाली करके आ जाएंगे। 1999 में क्या हुआ कि अटल बिहारी वाजपेयी जी, व्हेन वी वेंट टू पाकिस्तान फॉर दैट लाहौर बस, वी थॉट कि चलो गले मिलते हैं, दोस्ती करते हैं, लॉट ऑफ क्रिकेट मैचेस हैपेंड। हमने क्या किया, वी बिलीव्ड, वी स्टार्टेड रिट्रीटिंग, हम लोग पीछे पीछे आ गए। पाकिस्तान ने क्या किया, परवेज मुशर्रफ वाज देयर, इंस्टेड ऑफ गोइंग बैक ही केम अहेड, उसने पूरा ऑक्यूपाई कर लिया। बाय द टाइम अटल बिहारी वाजपेयी जी एंड ऑल केम बैक, इट वाज नोन कि दे हैव ऑलरेडी ऑक्यूपाइड दो स्ट्रेटेजिक पोजीशन, क्योंकि उनके लिए वो हाईवे बहुत क्लोज था। अगर वो वहाँ से फायर मारते, हाईवे अगर क्लोज कर देता तो इंडिया का लिंक टूट जाता, दैट वाज द रीज़न। एंड बाय द टाइम वहाँ के जो चरवाहे होते हैं शेपर्ड्स, वो भाग के आए एक बार आर्मी के पास, क्यों दे आर लाइक द ईयर्स एंड आईज ऑफ आर्मी ना, ऊपर जो चरवाहे होते, वो बोले कि ना यहाँ बहुत लोग घूम रहे हैं बूट वीट डाल के, ऊपर से जो कपड़े जो भी वहाँ के लोकल कपड़े पहन के, बट नीचे बूट्स वगैरह है। तो दैट इज़ द टाइम व्हेन आर्मी सेंट सौरभ कालिया बोल के, लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया एंड हिज टीम, 5 लोग को, कि जाके देख के आओ क्या है करके। सौरभ इज़ माई बैचमेट, बैच इक्वलेंट, और उनको उन्होंने पकड़ लिया। वेरी फेमस इंसिडेंट इफ यू गूगल। अब पकड़ा तो इतनी बेदर्दी से, दे उन 5 का 6 का दोनों आंखें निकाल दी, पूरे हड्डी तोड़ दिए, सारे उंगली तोड़ दिए, बदन पे इनफैक्ट प्राइवेट पार्ट्स काट दिए, सारे बदन पे देयर वर सम 250 to 300 सिगरेट के मार्क्स, ऑल 5 ऑफ देम। जब मिला नहीं तो इंडिया लॉन्च्ड अनदर पार्टी, ही वेंट, कैप्टन अमित भारद्वाज बोल के,
वो 21 लोग गए थे. जब वो लोग वहाँ पहुँचे, देखा तो ये लोग 500-600 लोग ऑलरेडी है वहाँ पे. तो आर इंटेलिजेंस फेल्ड समवेयर. अमित ने क्या किया कि ही सेंट अदर्स बैक. ही एंड अनदर गाय फॉट 500 पीपल. So in that he also got fallen in line of duty, and that is how the Kargil war started. फिर हमने बोला कि पहला गोली तुमने चलाया. दिस वाज द अटल बिहारी वाजपेयी स्टेटमेंट. आखिरी गोली कब चलेगा, वी विल डिसाइड. सो दैट इज हाउ द कारगिल वॉर हैपेंड. नाउ व्हाई आई एम कोरिलेटिंग टू डिसिप्लिन. अब पाकिस्तान ऊपर बैठा है, हम नीचे. तो कोई भी सेन आदमी होगा, अगर मैं सिविल या कॉर्पोरेट में आज बोलूँ, सपोज आई एम इन कॉर्पोरेट, मैं बोलूँगा कि ऊपर इतने लोग, दे नो ऊपर से गोली मारते ही जा रहा है, तुमको यहाँ से वहाँ पहुँचना है, ऑक्यूपाई करना है. मैं कॉर्पोरेट के सबको बोलूँ, वर्क फोर्स को, चलो मेरे पीछे ऑक्यूपाई करना, बोले फक ऑफ करके ना, तू जा मर करके. बट आर्मी के जो जवान है जो है, उनको मालूम है कि द स्ट्राइक रेट फॉर देम इज ऑलमोस्ट 99-1. कि मैं जाऊंगा, मैं मरूंगा करके. अगर डिसिप्लिन नहीं होता, ये कोर नहीं होता, तो नोबडी वुड हैव गॉन अप. सो दे न्यू कि ना दे वोंट सर्वाइव सम टाइम, बट दे वेंट बिकॉज ऑफ दैट बाइंडिंग फैक्टर. जो ऑफिसर थे, कैप्टन विक्रम बत्रा और कैप्टन मनोज पांडे, जो भी है, कि उसने बोला जाना है, एंड दे आर द पीपल हु लेड फ्रॉम फ्रंट. सो परमवीर चक्रा इज कैप्टन विक्रम बत्रा, कैप्टन मनोज पांडे, आदि परमवीर चक्रास. फिर एक योगेंद्र यादव एंड संजय कुमार, 4 परमवीर चक्र. इनको मालूम था, दे हैड गॉन दैट टू द हाइट ऑफ लाइक 14,000 feet without proper clothing, and that comes from discipline. That is the importance of discipline in a force, and that is what binds you. Abhi bhi, like I am out of the armed forces last 15 years so, but that discipline binds even today, even for training. अगर सुबह उठना है रनिंग के लिए, तो अपने आप आ जाता हो. So yeah, वो नींव है फौज का. That's how it happens. Like for a messy people, right? I mean, I'll tell you, अभी ये ट्रेंड चल रहा है entrepreneurs का, कि the more lazy you are, basically you are not a hard worker, you are a smart worker. ये अभी ट्रेंड चल रहा है कि अगर आप कम टाइम में ज़्यादा काम कर पाओ. एंड आई बिलीव दैट entrepreneurs currently who are starting new 0 to 1, वो सबसे ज़्यादा मेसी होते हैं और आउट ऑफ फोकस होते हैं. एंड वाई आई एम आस्किंग यू दिस क्वेश्चन इज बिकॉज if they don't have discipline and focus, right, they will not change their company's destiny. So entrepreneurs को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे they train themselves to become disciplined and they solve the major problem of procrastinating. लोग बहुत procrastinate करते हैं. So what is your... See, when we talk about procrastination, like मैं अगर simplest thing is कि मुझे आज का जो काम है वो कल करना है. Between that thing and that thing, there is an opportunity loss which happens, and sometimes that opportunity loss would be very high between that particular period. So corporate में हम भी बोलते हैं defined procrastination बोलते हैं. Sometimes we define कि ना मुझे procrastinate करना है, आई नो कि मुझे करना है इसके लेकर के, बिकॉज ऑफ सम कस्टमर कंप्लेंट और समथिंग वेरिन आई विल हैव टू वेट एंड प्रोक्रेस्टिनेट करके. सो देयर इज अ डिफाइंड प्रोक्रेस्टिनेशन. अगर वो डिफाइंड प्रोक्रेस्टिनेशन है, फाइन, बट इफ इट्स अ जेन्युइन प्रोक्रेस्टिनेशन, आज करना और नहीं कर रहा है, सो आई थिंक देयर वुड बी अ बिग अपॉर्चुनिटी लॉस. एंड कब पता चलेगा ये? when something drastic or catastrophic happens, many a time it happens. We have lost opportunities. यहाँ पे भी होता है ना कि टेंडर भरना है कुछ, ये ठीक है कल भरता हूँ करके, वो कल के चक्कर में क्या होगा, many live cases मेरे यहाँ भी, कल के केस में होगा, when now you have 4 days to fill that tender for example, 50 करोड़ 60 करोड़, तो बोला ठीक है यार संडे है, आज फ्राइडे को भरना था, मंडे जाना है, तो फ्राइडे मैं भर सकता था, बोला ठीक है यार मंडे आके भरूंगा. सैटरडे संडे गया, ना मंडे मॉर्निंग दैट इज़ द लास्ट डे एंड यू फील एवरीथिंग इज़ राइट, और वो मंडे भरना है एंड दिस सिस्टम फेल्स, वो हैंग हो गया वहाँ का, एंड योर टेंडर का लास्ट कट ऑफ टाइम इज़ 3 o'clock एंड यू आर स्ट्रगलिंग, एंड नहीं हुआ 3 बजे तक. और जो गवर्नमेंट टेंडर है, दे डोंट एक्सेप्ट आफ्टर, टेक्निकल ग्लिच हो कुछ हो, दे डोंट केयर. Now you have lost an opportunity of that 50 crores participating in that tender. Probably you would have won, right? Now why this happened? Because तुम कर सकते थे ना फ्राइडे, अगर तुम्हारे लिए इतना है, या थर्सडे कर देते. So many a time that happens. And so अगर आप आर्मी में हो, and let's take the same case study, right?
what would be the leader saying? Ke, you know, let's say you are the one who is executing the tender, right? And I am your senior. How would you make sure that the person executes and does not procrastinate? So आर्मी नेवी एयरफोर्स में कैसे है ना, फॉर एग्जाम्पल सेम एग्जाम्पल ना, व्हेन इन नेवी फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई एम इन अ शिपयार्ड और डॉकयार्ड, तो मुझे मालूम है डॉकयार्ड फॉर एग्जाम्पल कैसे होता है. डॉकयार्ड्स आर द प्लेस जहाँ शिप रिपेयर होता है. जैसे गाड़ी फॉर सिंपल एग्जाम्पल कार का गराज होता है ना, ऐसे जहाज वॉरशिप्स व्हेन इट कम्स, सो पानी से पहले अंदर आता है. एंड देयर आर ड्राई डॉक्स, जिसको Okay. ड्राई बोलते हैं. ड्राई डॉक्स मतलब एक ऐसे खाचा होता है, आगे गेट होता है, सी से पानी. सो जैसे मैं ड्राई डॉक को ऊपर कर लूँ, गेट को, जहाज अंदर आता है, एंड देन यू नो गेट क्लोज होने, देयर इज अ मैकेनिज्म, पानी ड्राई होके शिप कम्स ऑन द बॉटम, राइट. अब मुझे मालूम है कि इसका जो निकलने का जो तारीख होगा, हाई टाइड, ये डेट पे निकलना ही है. यू डोंट हैव अ चॉइस. सो आई डोंट गिव यू अ फ्रंट टाइम, आई गिव यू अ टाइम कि दिस इज 25 जनवरी को निकलना है. अब आज तुम दिसंबर में हो, कहीं पे भी हो, अब यू वर्क, ये टाइम में तुमको रात को जागना है, क्या करना है, दैट इज योर प्रॉब्लम. ये डेट पे, ये टाइम पे जहाज निकलेगा. सो एंटायर थिंग स्टार्ट वर्किंग बैकवर्ड. सो सेम एग्जाम्पल, तो मुझे मालूम है अगर कट ऑफ मेरा मंडे, इन फौज दे नेवर वेट फॉर दैट कट ऑफ. उसके 5 दिन पहले, 6 दिन पहले विल बी दी कट ऑफ डेडलाइंस. ये तुम्हारा कट ऑफ है करके. Okay. बाकी कुछ हो गया, देयर आर 4-5 डेज, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी जिसको बोलते हैं. फौज वर्क्स ऑन दैट फंडा. देयर इज नो, Right. एक बोलते हैं ना IOU बोल के, देयर इज अ फंडा, यू नो, इम्पॉर्टेंट ओवर अर्जेंसी. सो आज सब कुछ इम्पॉर्टेंट है, यू नो. हो सकता है फॉर एग्जाम्पल फॉर दिस पॉडकास्ट टू पब्लिश, सो यू वुड बी हैविंग अ टाइम फ्रेम. Exactly. सो कि मुझे ये डेट पे करना है. सो इफ़ यू प्रोसेस, सब कुछ सही हो गया, नाउ दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू कि ये पॉडकास्ट पब्लिश होना है. इम्पॉर्टेंट, ये डेट पे मुझे जाना है. तो सपोज वो नहीं हुआ, ये हुआ, मे बी फॉर सम कमर्शियल रीज़न, और ये कि तुमको ये पॉडकास्ट रिलीज करना ही है बिकॉज ऑफ सम एग्रीमेंट एंड ऑल किसी के साथ. आई एम जस्ट गिविंग इट. Right. तुम तब तक इम्पॉर्टेंट नहीं रह के नहीं किए इम्पॉर्टेंट के पीरियड में, देन इट बिकम्स अर्जेंट. ओके, सो देयर इज समथिंग कॉल्ड IOU in Forge which we use, important over urgency. Everything should be important. Okay. अगर वो important के टाइम में नहीं किया, it becomes urgent. Right. And when it becomes urgent, there is a whole lot of nightmare. You know, anything can go wrong in that. तो हम लोग IOU फंडा यूज करते हैं. We don't allow anything to become urgent. Wow, that's a Everything great framework. remains important. You know. And let's say आपकी टीम है, और as you said, right, कि because if it was you would have done it, but आपकी टीम है. अब बिजनेस में टीम होती है, और टीम में सबको वो गोल पे लाइन करना. बिकॉज लेट्स से द सेम एग्जांपल ऑफ टेंडर, राइट. अगर जो इंसान है जिन्होंने फ्राइडे को बेसिकली करना चाहिए था क्लोज, उन्होंने मंडे को किया, दे प्रोक्रेस्टिनेटेड. लीडर वांट्स टू लाइक कि फ्राइडे को हो जाना चाहिए, इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट ऑल्सो, राइट. बट इट डज नॉट हैपन. So how do you incentivize and how do you basically बोलते हैं ना साम दाम दंड भेंट. So how do you basically treat that particular people and how do you treat it? नहीं, सो कॉर्पोरेट में भी, यू नो, आई थिंक सेम फंडा जो भी एंटरप्रेन्योर होगा, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू नॉट ट्रीट देम एज अ रिसोर्स. ओके, जब हम लोग इंटरव्यू करते हैं ना, वी फॉलो दैट फंड. आई नेवर कॉल देम रिसोर्स. रिसोर्स बोला तो यू आर जस्ट एन ऑब्जेक्ट, है ना. सो व्हेन दैट पर्सन रियलाइज कि आई एम नॉट अ रिसोर्स, आई एम ऑल्सो एन इक्वली इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, आई एम अ कॉन्ट्रीब्यूटर, यू नो. जो एंड गोल है ऑर्गेनाइजेशन का 100 crore या वट एवर रेवेन्यू टारगेट होगा या OP टारगेट होगा, व्हेन यू रियलाइज कि यू आर अ पार्ट ऑफ दैट ग्रोथ स्टोरी और यू आर पार्ट, then automatically you know, that feeling comes in that employee also. See, हम क्या लैक करते हैं ना कॉर्पोरेट में. फौज में when we say that each and every person is part of that journey और part of that mission. एक ने भी अगर फकअप मारा कहीं पे तो entire mission goes down. Okay. कॉर्पोरेट में ना, अभी मेरा टीम है इतना बड़ा, सो वी ऑलवेज फॉलो दैट कि भैया यू आर नॉट अ रिसोर्स फॉर मी. सो अगर इफ मेरी सैलरी या तनख्वाह बढ़ती है तो इक्वली यूअर थिंग विल ऑल्सो बी देयर कर. Right.
And when you give that vision clear to anyone, so I think everyone will be aligned. Wow. So what we do, we have lot of especially in my team and all, अगर एक suppose business review meeting होता है हमारा, who comes in a business review meeting? All the corporate जो भी leaders हैं मेरे 25 ऑफिस होंगे, वहाँ के टॉप लोग होंगे, उनके अंडर भी 50 लोग हैं. अब लीडर अपना लेके जाएगा, उसको ये सेल्स है, उसका रेवेन्यू ये करे, बट व्हाट अबाउट दोज 50 गाइज हु विल बी वंडरिंग कि मेरा बॉस वहाँ जाके कॉर्पोरेट ऑफिस में गया, पार्टी विटी करके, उसका फोटो भी देखा था इंस्टाग्राम पे, ही डजंट नो ना कि स्ट्रेटेजिकली क्या हुआ. सो व्हाट वी डू इज, वो टाउन हॉल जैसे करते हैं, वेयर ऑल दी 350-400 एम्प्लॉइज कनेक्ट टू अस. सेम जो गोल्स हमने इन 25 को बताया था कि दिस इज माई रेवेन्यू प्लान, फाइनेंशियल ईयर 24-25 का ये प्लान है, दिस इज द ग्रोथ है. एवरी इंडिविजुअल इन दैट कंपनी नोज कि ये है एंड व्हाट इज योर कंट्रीब्यूशन टू दैट. Wow. So when you are aligned to that common goal, things happen. Amazing. So it's a inclusivity concept that you Exactly. make your employee, not just the employees and the resource, as you said. Exactly. They are basically co-owners of it. We do. And, the team is only having one KPI. मतलब सबके individual KPIs नहीं है. Exactly. सबके एक ही KPI है, एक ही goal है, and obviously department wise हो सकते हैं. मैंने देखा कॉर्पोरेट में अभी लास्ट 15 ईयर्स आई एम इन कॉर्पोरेट, मैंने देखा कि बहुत लोगों को फियर होता है एज अ लीडर. द फियर इज व्हाट, फौज में हमें वो नहीं होता है कि आई नो कि देयर इज अ अगर मैं लेफ्टिनेंट कमांडर, मैं कमांडर बनूंगा एंड एवरीबडीज कॉन्ट्रीब्यूशन इज टू फॉर दी. जब हम लोग यूनिट में होते हैं ना, कैसे बोलते हैं कि मेरा जो CEO होता है, वी आर ऑल वर्किंग फॉर द नेशन, फॉर आवर ग्रोथ एंड ऑल्सो द CEO's ग्रोथ, बिकॉज उसको जाके आगे ना, it will be my proud moment when my CEO will become a next rank. Right. Everyone orient towards that. In that bargain, everyone orient for everyone else's और खुद के बीच में. Corporate में मैंने देखा है ना कि जैसी वो आ जाता है ना, people are worried to share many things with the next level. क्योंकि उसको लगता है कि मैं कॉस्टली रिसोर्स हो जाऊंगा. एक दिन ऑर्गेनाइजेशन बोलेगा भैया तू तो 15 साल, तेरा सैलरी 50 लाख या 60 लाख है, एंड मैंने अगर सब कुछ मेरे जूनियर को बता दिया, who's like 5 years 10 True. years, एंड वो भी सीख गया इतना ही, तो कॉर्पोरेट उसको ले लेगा, बोलेगा मैं कॉस्ट रिडक्शन में तेरे को उड़ा देता हूँ. वो चक्कर में ना बहुत लोग पिस जाते हैं. सो फर्स्ट थिंग इज, ऑफ कोर्स कंपनी हैज टू ग्रो विद अ विजन, एवरीथिंग, एंड व्हेन दैट विजन ऑफ फॉर द कंपनी इज क्लियर, यू हैव टू टेल दिस कॉन्स्टेंटली टू दैट नंबर 2 या नंबर 3 जो लीडरशिप टीम है कि डोंट वरी, यूर वन ऑफ दोज रोल इज टू मेक देम ग्रो. Right. हो सकता है तुम्हारे कंपनी के लिए काम करेगा या इन बेटर प्रोस्पेक्ट ही विल मूव, बट एंड ऑफ द डे व्हेन ही मूव्स टू सम अदर प्लेस, ही विल ऑलवेज हैव दैट ग्रैटिट्यूड टू यू कि भैया, Makes sense. वन ऑफ द रोल ऑफ लीडरशिप इज मेंटरशिप आल्सो, है ना. दैट इज द प्रिंसिपल व्हिच वी फॉलो. I mean, that's, I would say, a super value add to all the entrepreneurs and founders out there. Now let's talk about something which is obviously, आपने बहुत सारे previous podcast में भी बोला है, but I want to keep it in a very one question topic. चाणक्य नीति, guerrilla, war techniques. I want to know some strategy aspect of it. और आपने obviously इतनी सारी wars, you have been a part of. So how, from the strategy part, right? How you basically take a decision, because we talk about gut feeling and we just spoke about it, right? So gut feeling कितना important है, and what are the different ways that we have won the wars, and the stories are not out. So कुछ ऐसी personal stories या 2-3 stories which you can share out, like some. Yeah, so one of the very important two stories I will tell. ये बात थी 1971 की. Okay. Not many of them knows the stories, when you do research and things like that. 1971 में, when I was not born, that time it was very clear, Pakistan was West Pakistan and East Pakistan post independence. बीच में हमारा land था, and it was East Pakistan and West Pakistan. Now there were a lot of atrocities which were happening in East Pakistan. It was dominant Bangla population. West Pakistan was dominant Muslim population, वहाँ के जो भी leaders थे, and they wanted to uniformly implement this in East Pakistan also. Now it is separated by a geography, बड़ा geography, and जो बांग्ला
स्पीकिंग पॉपुलेशन थे, उनके जो वॉट एवर देयर थिंग्स वेर नॉट टेकन इन टू अकाउंट. सो दैट वॉज दिस थिंग, एंड दैट इज़ वाई मुजीबुर रहमान का जो एपिसोड हुआ, देयर वॉज लॉट ऑफ दिस थिंग. एंड व्हेन द पॉलिटिकल थिंग हैपेंड, जब वहाँ का जनरल इलेक्शंस हुआ, सरप्राइजिंगली मुजीबुर रहमान की पार्टी गॉट द काउंट. एंड वो लोग कन्वीनियंटली दे सेड कि दिस इज नॉट, वेस्ट पाकिस्तान डिसाइडेड, ये नहीं चलेगा करके. एंड देन मुजीबुर रहमान वाज अरेस्टेड एंड लॉट ऑफ थिंग हैपन इन बांग्लादेश. सो आई एम जस्ट टचिंग अपॉन द बैकग्राउंड. वहाँ इतनी एट्रोसिटीज़ हुई, बच्चों को मार दिया, वुमेन्स वेर रेप्ड ऑन द रोड, many you know. And that's how the influx of Bangla people started into India, especially Assam, Tripura, Bengal. यहाँ पे जब बहुत रेफ्यूजीज आने लगे, पहले तो ठीक था, देन बंगाल का जो डायनामिक्स बिगड़ने लगा कि इतने रेफ्यूजीज, ऐसे भी यहीं द ग्रेट बंगाल फेमिनाइन वो जो हुआ था, फेमाइन हुआ था, ऑल दोस अपने ही नहीं संभल रहे तो ये कैसे संभलेंगे करके. तो देन इफ़ यू हैव सीन दी मूवी सैम मानेकशॉ, अगर देखा होगा, यू विल गेट अ जिस्ट कि एज सच इंडिया वाज ऑन द ब्रिंक ऑफ वॉर विद पाकिस्तान ऑलवेज, एंड दिस वाज एन अपॉर्चुनिटी जब ये लोग अंदर आ गए थे. एंड देन वॉर वाज इमिनेंट, यू नो, होने ही वाला था. तो जब वॉर हो रहा था तो आर्मी, सैम मानेकशॉ का देखो, आर्मी वाज एंगेजिंग वेस्ट पाकिस्तान. एंड नाउ द स्ट्रेटेजी पार्ट कम. तो इंडिया को पता था ये बहुत पहले. तो स्ट्रेटेजी में कैसे ना, गट फीलिंग जो बोलते हैं ना, दैट इज व्हेन द गट फीलिंग वाज देयर 1-2 साल पहले से ये होने वाला है करके. दैट इज व्हेन यू सी द सिनेरियो अराउंड, व्हेन यू स्टडी, जैसे मार्केट स्टडी हम बोलते हैं ना आज के टर्म में, व्हेन यू स्टडी द मार्केट, ग्लोबल मार्केट, वी नो सर्टेन थिंग इज गोइंग टू हैपन, राइट. तो पता था ये होने वाला है. 1 साल पहले से 70 में, बहुत कम लोग को पता है स्टोरी, नेवी स्टार्टेड बिल्डिंग अ कोहर्ट यूनिट, जिसको बोलते हैं ना सीक्रेट यूनिट. इसमें उन्होंने क्या किया, उनको मालूम था बांग्लादेश इज़ अ रिवराइन कंट्री. रिवराइन कंट्री मतलब पूरा रिवर नेटवर्क है वो कंट्री में. अगर वो कंट्री में, अगर आपको दैट टाइम इट वाज ईस्ट पाकिस्तान, वो कंट्री में कुछ भी करना है, वॉर जीतना है, तो यू हैव टू बी स्ट्रांग इन द रिवर्स, है ना, वाटर्स, रिवर्स को आपको स्ट्रांग बना. अब वो कैसे करे, उनको मालूम है हमारे लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो सकते नेवल दिस थिंग. सो व्हाट दे डिड, नेवी फॉर्म्ड अ टीम इन नेवल हेडक्वार्टर्स. एक सारे बंगाली स्पीकिंग ऑफिसर, दैट इज द ब्यूटी, यू नो. ये नहीं कि किसी को भी उठा के डाल दिया. दास, कैप्टन दास थे, ऐसे कैप्टन रॉय थे, दे वर ऑल बंगाली स्पीकिंग पीपल हु हैड क्रेडेंशियल्स, क्योंकि वो बांग्ला बोल सकते हैं. एंड यू नो, अगर बांग्लादेशी है तो दे कैन कन्वर्स, दे विल नो. तो इन्होंने एक यूनिट बनाया वहाँ पर नेवी में, सीक्रेट यूनिट. एंड इनका काम क्या, दे पिक्ड अप वेरियस नेवल डाइवर्स, नेवी के जो डाइवर्स होते हैं जो डीप सी डाइविंग करते हैं. ना अभी वो मरीन कमांडोज बोलते हैं, कमांडो विंग जो बोलते हैं ना, तो नेवल डाइवर्स को पिक किए बहुत सारों को. इनका रोल क्या था, ईस्ट पाकिस्तान के आसपास, बंगाल के आसपास एक कैंप रखेगा. एंड जो मुक्ति बाहिनी जो बोल के बंगाल के रेबल्स थे, रिवोल्यूशनरीज जिसको बोलते हैं, उनमें से 19 से 20 साल, 18-19 ईयर के जो भी फिट यंगस्टर्स होंगे, उनको दे विल ट्रेन इन स्विमिंग एंड कमांडो ऑपरेशन. सो दिस पर्टिकुलर यूनिट 10-12 लोग थे, 20-21 लोग थे. ये लोग लुंगी बनियान में होते, दे वर नॉट वेयरिंग यूनिफॉर्म, यू नो. एंड दे ट्रेन दिस मुक्ति बाहिनी यूथ्स. इनका काम क्या था कि दे यूज्ड टू स्विम 5-5 किलोमीटर. उनको इतना ट्रेन करते थे कि 5-5 किलोमीटर स्विम करके जाके, देयर वाज अ माइन कॉल्ड लिम्पेट माइन. लिम्पेट माइन पाकिस्तान के जहाज, बिकॉज ईस्ट पाकिस्तान में पाकिस्तान की जहाजें बहुत थी ना, बिकॉज दे वर पाकिस्तान, बोट्स एंड शिप्स. तो देयर रोल बांग्लादेशी लड़कों से ही कराए, वो जाके लिम्पेट माइंस लगा के स्विम करके वापस आ जाते थे, है ना. तो जैसे मैंने बोला कि अब टेक्नोलॉजी, नाउ दी स्ट्रेटेजिकली सी नेवी न्यू 1 साल पहले करना है, 1 साल पहले ही, और उनको मालूम है हमसे नहीं कर सकते, इसलिए बांग्लादेशी यूथ्स को ट्रेन किए, इतने सारों को, 300-400 यूथ को ट्रेन किए. लिम्पेट माइन इज़ अ टेक्नोलॉजी, उनको टेक्नोलॉजी भी नहीं मालूम था. देर इज़ अ फ्यूज़ प्लग, उस पर एक फ्यूज़ प्लग आता है. नाउ द प्रॉब्लम इज फ्यूज़ प्लग पानी को लग गया, 30 मिनट्स यू हैव, 30 मिनट्स में आपको लगा के आना, फूट जाएगा 30 मिनट. अब ये लोग ये था 5 किलोमीटर 30 मिनट्स में कैसे होगा करके, है ना. तो नाउ दे स्टार्टेड डिस्कसिंग कि क्या टेक्नोलॉजी यूज़ करे. कोई ऐसे टेक्नोलॉजी नहीं था. तो ओवर द टाइम, यू नो, रात को ड्रिंक्स वगैरह पे व्हेन दे वर हैविंग, they were talking, and then one of the naval officers said, कैप्टन सावंत बोल के थे, सामंत,
ही इज अ महावीर चक्रा, वो ऐसे फ्रस्ट्रेट होके बोला, साला ओलंपिक मैन ऐसे शेप में होता है ना लम्बा, बस इस पे कॉन्डम्स लगाओ करके, यू नो, ऐसी मस्ती में बोल दिया। एंड समवन, किसी को क्लिक हुआ कि यार व्हाई नॉट ट्राई दिस करके, एंड ट्रस्ट मी दे ट्राइड इट। तो वो कॉन्डम्स लगा के एंड ओलंपिक माइन लेके गया, एंड देखा तो आधा घंटे में फूटा नहीं, उसने 1-2 एक्सपेरिमेंट किया, एंड दैट बिकेम अ सक्सेस दिस थिंग। एंड ये जो नेवी की टीम थी वहाँ, वो हेडक्वार्टर्स को बोले कि कॉन्डम्स के पैकेट चाहिए, बॉक्सेस के बॉक्सेस, एंड वो ट्रिवेंड्रम में हिंदुस्तान लैटेक्स है। सडनली दे स्टार्टेड रिसीविंग ऑर्डर्स फ्रॉम नेवी, इतने बॉक्सेस क्या, नोलू बोला साला करने क्या भेजा था, कर क्या रहे लोग करके ना, सो दे गॉट दिस थिंग एंड इट वर्कड। ये लोग जाते थे स्विम करके वहाँ लगाते थे, फिर जैसे ही लग गया निकाल के, फिर दे यूज्ड टू स्विम एंड कम बैक। पाकिस्तान की शिप स्टार्टेड ब्लास्टिंग, कुछ तो 50, 60, 70 जहाजें फूटी उनकी वहाँ पर। एंड विद इन दैट टाइम फिर इंडियन नेवी के जो सीक्रेट यूनिट्स थे, 1-2 जहाज प्लेस थे, जहाज जो विच वॉज नॉट अ वॉरशिप, नॉर्मल कमर्शियल शिप फ्रॉम कलकत्ता, उसको पेंट करके ना वॉरशिप जैसे 1-2 गन्स फिट किए, एंड दे पार्टिसिपेटेड अलॉन्ग विद दैट मुक्ति बाहिनी, एंड दैट इज हाउ द बांग्लादेश वॉज लिबरेटेड। एंड यहाँ ये साइड पे एक्चुअल वॉर जो था उसमें नेवी वॉज पार्टिसिपेट, कराची ठोक दिया 71, दैट वॉज द स्ट्रेटेजी पार्ट। 1 साल पहले से ही पता था उनको, राइट, वहाँ खत्म हो गया, देन वी लिबरेटेड बांग्लादेश, 95,000 प्रिजनर्स, वाओ, प्रिजनर ऑफ वॉर जिसको बोलते हैं, सोल्जर्स सरेंडर्ड पाकिस्तान, दैट वाज अ बिग इवेंट। ये एक पार्ट हुई। सेकेंड पार्ट वाज ड्यूरिंग कारगिल वॉर, यू नो, नेवी न्यू कि आर्मी पे सब फोकस कर रहा था ना, तो 1999 नेवी के 33 शिप्स वेयर ऑन द माउथ ऑफ कराची। इसके पहले पाकिस्तान को भनक लगे 33 शिप्स वेयर देयर लोडेड विद मिसाइल्स एंड ऑल, बिकॉज इट्स अ वेरी स्ट्रैटेजिक थिंग। और इन्होंने क्या किया, पाकिस्तान के अंदर जो भी लॉजिस्टिक आता है सबको बंद कर दिया, जो भी मर्चेंट शिप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है ना, बोला जो भी पाकिस्तान में जाएगा हम मार देंगे उसको मिसाइल। तो एवरीवन स्टार्टेड रनिंग। स्ट्रेटेजिकली सब कुछ रोक दिया। उनकी कंट्री में सिर्फ 6 दिन का खाना था, राशन और ये। नाउ दैट्स अ स्ट्रेटेजिक मूव, बिकॉज आप उसकी कुछ आने ही नहीं दोगे तो क्या करोगे। सो दे लिटरली प्लीडेड, दैट वाज वन ऑफ द रीजंस कारगिल वॉर में दे एक्सेप्टेड जो भी एक्सेप्ट करना। सो 33 शिप्स, so I was part of one of those ships. That's how I was part of that Operation Talwar. So Kargil War, Army call it as Kargil War with Operation Vijay. तो Operation Vijay में this is the Operation Talwar बोलते हैं. So I was in one of those front ships 1999 में. So that's how you see. I was only 22 and half. तो मुझे ही पता नहीं था कि वॉर में हूँ करके. And that's when you realize, oh shit, तुम तो वॉर में थे करके, है ना, ऐसे करके. So yeah, it was a proud moment because you know, being at 22 you were in war, and तभी पता भी नहीं चला when it sinks in after so many years कि अरे you were just so close to that and with fully loaded missiles and all. So that's how the strategy. And the other thing is कि lot of tie-ups with lot of countries like United States हुआ, Russia हुआ, Israel हुआ, Australia हुआ, Japan हुआ. So we have tied up with lot of navies for technological sharing, lot of advancements, a lot of exercises we conduct. उनके पॉजिटिव्स क्या है लेने, जापान के साथ जिमएक्स करते हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ ऑसिंडेक्स बोल के, लॉट ऑफ मरीटाइम एक्सरसाइज हैपेंस, यू नो, टू बिल्ड अ गुडविल रिलेशनशिप. वैसे फ्रांस से हमने स्कॉर्पियंस आर फ्रॉम फ्रांस, और अभी तो एडीसी हमने बनाया है कि विक्रांत विच वी मेड द एयरक्राफ्ट. इसके पहले का विक्रमादित्य वाज फ्रॉम रशिया, एडमिरल ग्रॉशक्रॉ बोल के शिप था. सो यस, लॉट ऑफ टेक्नोलॉजिकल यू नो शेयरिंग, जितना शेयर करना उतना. दी जो न्यूक्लियर सबमरीन्स लिए थे हमने, बैलिस्टिक मिसाइल SSBM जिसको बोलते हैं, SSN जिसको अरिहंत बोल के जो फर्स्ट. सो इंडिया ओवर द ईयर्स, you know, when we were in Navy, मुझे अभी भी याद है 1999 में I was in a base unit. वहाँ पे हम लोग जो मिसाइल्स की गाड़ी चलती थी, that was typical Russian vehicles. अब वो हम लोग जब मिसाइल्स यूनिट से लेके शिप में जाने जाते थे, 1 लीटर डीजल में या पेट्रोल में 2 किलोमीटर चलता था गाड़ी. ओके, 1 लीटर पेट्रोल में 2 लीटर 2 किलोमीटर हैवी. ऐसे. दैट वाज द माइलेज. और उसके बीच में 50 बार रुकते थे वो लोग.
बिकॉज वो कार्बोरेटर या जो भी था वो दैट वाज ऑफ रशियन ओरिजिन. Yeah. So there were no alternative, and that is how the indigenization ka thing started. Improvisation, Yeah. innovations, and this thing. So a lot of focus on indigenization. Now when I see 20 years later, 15 years later, abhi Russian vehicles are phased out. Abhi hamara Tata, Mahindra and all have come equally with all those stuff. I remember जब मैं फौज में था तभी that was the time when all these cases were moved for the indigenized vehicle and all. Now when I come to know abhi agar dekho, that is how the progress has happened. A lot of Right. focus on indigenization. Make in India. So Make in India was a very big thing which happened for us. आज देखो LCA तेजस जो बना है, UAVs जितने सारे हैं, ड्रोन्स Yeah. है सारे, एवरीथिंग इज फोकस. अभी जो डिफेंस एक्सपो हुआ था गांधी, आई थिंक गांधी नगर, गांधी धाम या कहीं पे, इट वाज ऑल इंडिजिनाइज थिंग. मेक इन इंडिया थे सारा. Wow. इट्स वेरी प्राउड मोमेंट Yeah. फॉर ऑल ऑफ अस. That is my follow-up question actually. But first of all, great story. Condom became a technology, and we won a war because of a condom. So, I mean, that's Very few people that's know. what I want to actually ask, because when you're in the war, right? There are decisions which are made on gut feeling. There are Exactly. decisions which are made on data. एग्जैक्टली. तभी तो डेटा था कुछ था ही नहीं, अपने पास टेक्नोलॉजी थी ही नहीं. सो आपने गट फीलिंग पे बेसिकली डिसीजन उठाया, True. राइट? सो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट एज अ नेवी ऑफिसर, आई वुड से लाइक दैट, राइट? बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, एंड दैट टाइम यू टेक अ डिसीजन ऑन गट फीलिंग. सो आई वॉन्ट टू नो, लाइक, हाउ डू यू मेक श्योर योर गट फीलिंग डिसीजन आर गोइंग टू बी राइट? सी अगेन कमिंग बैक टू द ट्रेनिंग अगेन, Yeah. जो हम लोग एकेडमीज में होते हैं ना, वी गो फॉर कैंप्स एंड ऑल. कैंप्स के लिए जाते हैं, एंड ऑल नेवल ऑफिसर्स एंड सेलर्स हैव टू गो फॉर कैंप्स, वेरियस कैंप्स. सो जब कैंप्स में, दैट इज द फर्स्ट टाइम यू आर एक्सपोज टू लिमिटेशंस. आपको कैंप्स 60-70-80 किलोमीटर रन करना होता है, जंगल वॉरफेयर एंड ऑल, एंड यू आर गिवन वेरी लिमिटेड रिसोर्स, वेरी लिमिटेड रिसोर्स. और आपके पास एक कंपस होगा, यू आर इन दी नाइट ऑफ जंगल, पानी कम होगा, ये होगा, एंड यू हैव टू नेविगेट 80-90 किलोमीटर. सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दे टीच यू टू फील योर गट इंस्टिंक्ट, यू नो. जंगल के बीच में आप 4 लोग होंगे, टू नेविगेट थिंग, आपको पता है कि यहाँ है ये, शायद वो गलत भी होगा एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. मुझे याद है बिकॉज हमारा जो ग्रुप था, वी टुक अ रॉन्ग डिसीजन, एंड हम लोग गोवा से कर्नाटक के जंगल में चले गए थे दैट टाइम. एंड व्हेन वी केम, वो कैम्प के बाकी सब लोग आ गए थे, हम लोग को ढूंढ के लोग आए थे, बिकॉज दैट वाज अ रॉन्ग इंस्टेंट, बट दैट वाज अ लेसन टू ऑल ऑफ. सो कमिंग बैक टू दैट पॉइंट, ऑल दिस इंस्टिंक्ट का जो बोलते हैं ना, दिस बिकम्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द ट्रेनिंग. ट्रेनिंग. And the academies teaches or imbibe you that gut instinct आगे. And जैसे जैसे सर्विस में आते हैं, imagine आप 21-22 years में people are going for war, Right. और अपने यहाँ 22 में कॉर्पोरेट में you are never given a leadership role. Right. यहाँ पे when you become a सब लेफ्टिनेंट या कैप्टन आर्मी के, जो भी आर्मी टर्म में लेफ्टिनेंट, पहला 1 साल आपको सब लोग हैंड होल्ड करेंगे, एंड देन एट द एज ऑफ 23 You're on यू your आर होल्डिंग अ यूनिट. 200 लोग आपके अंदर है, जो आपके सोल्जर्स और सेलर्स है, दे आर 30 years ऑफ एक्सपीरियंस, दे आर वेटिंग फॉर योर डिसीजन. तो उस पे, एंड वो टाइम पे हाउ यू बिहेव Yeah. इज व्हाट टीचर. बहुत मार लगती है, आई एम नॉट सेइंग कि सब लोग पैदा ही ऐसे होते. यू लर्न, यू रीलर्न, यू लर्न, यू रीलर्न, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम यू विल बी रियलाइजिंग कि बॉस ये है करके. So training and experience makes a It's all training and character. experience. Yeah, great, That's why amazing. they focus more on training, So abhi in 2024, right? What are the different technologies, specifically in Indian Navy, right? And I'm very sure that though you're out of Navy, आपको थोड़ा बहुत तो idea होगा. Yeah, so lot of AI आ गया है. AI आ गया अभी, and I always tell everyone कि लोग मुझे पूछते हैं ना कि सर how your armed forces is coping up. So see, there are DRDOs, there are DRDLs, there are NSTLs, जो इंडिया के प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स है, who works for the armed forces. Okay. तो टेक्नोलॉजी बाहर भनक होने से पहले देर आर साइंटिस्ट टू दी लेवल ऑफ, अलग लेवल पे रिसर्च होता है उनका. तो बाहर जो आने के एक आध साल पहले यहाँ काम चालू हो जाता है, बिफोर यू कुड इवर इमेजिन द टेक्नोलॉजिकल थिंग्स एंड एडवांसमेंट हैपेंस इन द आर्म फोर्सेस. सो
जैसे मोदी जी बोलते हैं ना कि और आई हैव हर्ड फ्रॉम अदर लीडर्स कि कुछ चीज़ों में अगर आप शातिर नहीं हो, इफ़ यू डोंट हैव कैपेसिटी देन कोलैबोरेट. So if you don't have capacity, don't waste on time on building that, you know. Because आपको मालूम है कि टेक्नोलॉजी रिडंडेंट बहुत जल्दी हो जाता है आज के डेट में. सो अगर आप वो इसके लिए आज तैयार नहीं हो, whereas you know X country has that, then you collaborate with that, you know, collaboration. So we believe in lot of collaboration, lot of tie-ups, lot of this thing, as well as you know building up a research team of young people. So if you see the UAVs, the drone technologies which has happened, हम लोग ड्रोन इतना सुनते हैं. Now there are various things with armed forces which is totally unmanned and drone operated. You know? I saw Uri eagle thing and I got really fascinated. Seriously. And being in AI, right? I'll tell you, मैंने गार्टनर की एक रिपोर्ट पढ़ी थी अभी कि पहले था न्यूक्लियर weapons, then you have biomedical weapons, then you have now currently I'll tell you it's AI. Like weapon AI can be also used as a weapon, right? And to counter that, it's cybersecurity. So question to you, right? So AI, जैसे आपने बोला कि टेक्नोलॉजी बदल रही है, हर दिन बदल रही है, एंड AI being a very fast moving thing, अपनी कंट्री like India, right? How we are more ready, right, towards this change which is going to come, and like tell me 2-3 startups which you know maybe right, where you know you see that ये technology बहुत बढ़िया है. So yeah, so lot of people, lot of you know, lot of entrepreneurs, lot of people are doing technologically very well. So one of my very close friend and a junior who's from the army, his name is Major Arun. So he's helping lot of youngsters who want to move into AI or drone technology or anything technological, you know. So he's helped lot of startup. One of the startups which I know, these guys were college project था इनका, and they were into technology and they wanted to do something. तो मुझे connect किया था, तो they were asking how. मतलब यार देख, technologically I'm not the person, I can only guide you and I will guide you to someone who will help you. That's how I guided them to you know, Arun. And now last, I think last few months back they have come with a company. उसका नाम exactly मुझे याद नहीं है, I'll let you know, but they are doing well. So their projects have been you know, showcased to government and things like that. I think something big is going to happen with this company. Youngsters have engineering grads अभी ये हुए. Couple of other companies जो है may not be a startup, but a couple of companies like Paras Defense and all are doing a great job in terms of, you know, advancement and tie up with the Army, Navy, Air Force. So ये कुछ companies है who are doing well. Any particular Navy product, I'll say product, boat, ship, submarine, right, which is your favorite? Like as we know, like Vikrant, right, is like See, they are all you know, ships and this thing, but I'm very fascinated towards the fast attack crafts and all. Fast attack crafts है, फिर जो छोटे छोटे पेट्रोल बोट्स है ना, who gives you high nautical speed and all. ऐसे बहुत सारे चीज़ें जो बन रही है, FAC जिसको बोलते हैं. So I had personally, after Navy, I had personally inspected few of the boats which was supposed to be, you know, which was to be inducted in Navy. So yeah, so testing that boats in sea, I mean, off Vasai was a great experience, you know. So, otherwise, yes, INS Vikrant, जो ADC है, that's such a great project which happened. न्यूक्लियर सबमरीन INS अरिहंत और उसके बाद का जो भी है, काफ़ी लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग, यू नो, इंक्लूडिंग अदर एयर. रफाले जो था, ऑफ कोर्स रफाले वी हैव गॉट इट फ्रॉम फ्रांस. वेरी वेरी इंटरेस्टिंग LCAs एंड UAVs, यू नो. सो जब भी भारत आता है, एनीथिंग मेड इन इंडिया, एंड जो फर्स्ट प्रोटोटाइप, ये जो टेस्ट होता है, एंड द पायलट हु इज टेस्टिंग दैट, I you know, I'm amazed at the courage they have, you know, the belief they have in our capacity and capability. So yes, interestingly,
मैं हमेशा सबको बोलता हूँ ना, मेरे स्पीच में भी लॉट ऑफ टाइम यू विल हियर दैट देयर इज अ, हमारे राष्ट्रगान में लास्ट का जो लाइन है ना, भारत भाग्य विधाता जय है जय. सो भारत भाग्य विधाता, दिस इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट 30 years. भारत भाग्य विधाता. सो वी आर द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड. Wow. That is how somebody had envisaged long back, ये हमारा राष्ट्रगान होगा करके. And that is happening now, you know, and it is going to, because मैं बहुत सारे जगह जाते रहता हूँ and you can see that vibe, right? So yeah, यही है. So, sir, I will tell you, like, I'm going to ask you the most interesting question. Now, when we know that we have AI, we have technology, we have, you know, best submarines, or you can say one of the best submarines and everything, or best, you know, anything like in defense, right? क्या हमने बर्मुडा ट्रायंगल का, you know, mystery solve किया है? बर्मुडा ट्रायंगल, मुझे बचपन से इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, बिकॉज यू नो आई लव पैरानॉर्मल एंड थिंग्स आर माय अदर हॉबी. तो इट इज़ ऑलवेज अ केस. अभी तो खैर इंटरनेट एंड लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, बट इवन टुडे दैट्स अ अनसॉल्व्ड मिस्ट्री, यू नो, लाइक लॉट ऑफ थियरीज आर देयर. वे बैक इट स्टार्टेड फ्रॉम कोलंबस के टाइम से, when he was about to his voyage to search India. And when he reached America, so he had experienced that turbulence in his magnetic compass and you know, storm-like situation and all. So ये काफ़ी सारे recorded है. Over the times, if I'm not wrong, more than 70-80 ships have gone down in that particular region. More than 20-25 aircrafts have been lost, and a lot of records, you know, you name it, whether it's Britain or whether it's US, सभी के जहाज कहीं ना कहीं गए. So lot of theories वहाँ पे. कोई बोलता है कि यू नो द मैग्नेटिक वेव्स आर सो स्ट्रॉन्ग देयर कि इट जस्ट सक्स इन. देयर इज अ ब्लैक होल थियरी विच हैपेंस, कि टाइम ट्रैवल का थियरी है कि वेयर इट टेक्स यू. देयर इज अनदर थियरी विच आई वाज वाचिंग ऑन यूट्यूब ओनली, कि देयर इज अ सिटी beneath it, Atlantis बोल के देयर इज अ सिटी विच, you know, which is much more advanced. This is a DC thing, I think. Then there is a alien theory कि वहाँ aliens रहते हैं करके. But very interesting. But you know, आज के डेट में if you see, there are lot of aeroplanes and things travel over that. अभी कुछ ऐसे ये नहीं है. So it always will remain a mystery कि क्यों ऐसे हो रहा है. But I think lot of books are there. काफ़ी लोगों ने पैसे बनाए उस पे ना, ये थियरी वो थियरी डाल के. बट अमेजिंग है, अमेजिंग, यू नो. किसी ने खूब कहा था, अगेन सी इज समथिंग, ओशियंस जो है अभी तक सिर्फ 15 to 18% एक्सप्लोर हुए अभी तक. सो दे फील दैट ऑल दो शिप्स एंड जो भी वहाँ चला गया जिसके कुछ मिले नहीं है, हो सकता है कि कहीं ना कहीं पड़ा होगा, नोबडी वुड हैव सर्च फॉर इट एंड दस लेबलिंग इट कि यहाँ पर ऐसे होता है वैसे होता है. बट वेरी इंटरेस्टिंग, यू नो, एवरी वन हैज़ देयर ओन पर्सपेक्टिव. ऑफ लेट तो लेकिन कुछ सुना नहीं है ऑफ लेट. So after कोई बोलता है कि इट इज़ जस्ट अ मेड आउट थियरी बाय अमेरिका करके ना, कि यहाँ पे आसपास आओ नहीं करके, तो जस्ट अ मेड आउट. इंटरेस्टिंग. Wow. So after listening to you, right, I want to exactly, you know, give the young Navy, you know, aspirants, right, a feedback and a takeaway in this podcast, or anybody who is watching towards Indian Force, right, कि हमें exams clear करनी है. तो if you want to end this, right, end this episode, I want to know from you, right, पहले तो, because you have gone through a lot and you have, with your experience, what are the different steps, right, a person should mentally, like एक होता है will power और एक होता है physical strength, right? So both the things, right, in both the ways, what are the different steps a person should do and how can he reach in one of the best job of the country? So so पहला है कि अवेयरनेस, यू नो, हमारे यहाँ अवेयरनेस नहीं है. लाइक आई वाज टेलिंग यू, even now the awareness, so lot of people will have to come, people like me, or you know, thanks to this medium जो भी है, one is कि people like us have to come out and tell people कि भैया ऐसे join करते हैं करके. then is the reach, you know, because जो भारत हमारा कंट्री है, अगर टायर 1 सिटी वगैरह बोला, टायर 2 सिटी, but there are टायर 3, टायर 4, टायर 5, you have to reach till that level. पहला अवेयरनेस है. गवर्नमेंट शुड टेक लॉट ऑफ इनिशिएटिव इन मेकिंग द अवेयरनेस. एक बार अवेयरनेस आ जाता है ना, उसके बाद अपॉर्चुनिटीज़
That's how when you know there are opportunities. फौज में plenty of opportunities. जब मुझे पता था that time I was only craze for uniform. बट मुझे ये नहीं मालूम था कि इंजीनियर भी बन सकते हैं अंदर जाके, डॉक्टर बन सकता है, कुछ भी बन सकते हो, because they give you opportunities for studies and other thing. So then the second thing is opportunity, of course. Third thing is the preparation, you know. हमें तो ये भी नहीं मालूम था कि ऑफिसर होता है और सेलर्स होते हैं करके, देयर आर 2-3 डिफरेंट सिविलियंस होते हैं करके. सिर्फ जाना है कि फौज में भी देयर आर डिफरेंट थिंग, यू नो. इफ़ यू गेट इनटू रॉन्ग थिंग यू विल, ऐसे लगेगा यार मैं वहाँ काबिल था शायद ये बनाने. तो इसलिए अवेयरनेस एंड देन वंस दैट इज सेट देन कम्स द प्रिपरेशन, यू नो, फिजिकली मेंटली. तो फिजिकल तो चाहिए ही है. एज अ यंगस्टर यू नीड टू इन्वेस्ट lot of time on your physical fitness, and of course the mental fitness. Now as this is the age of mental wellness and mental fitness. So mental fitness is something where you don't diversify into unnecessary things, you know? जो बोलते हैं ना, lot of self analysis and you know, not believing in yourself, having self doubt. अभी का it's a topic which is trending. So you have to stop comparing yourself with others, because सब जगह मैं यही बोलता हूँ, सी जब हम पैदा हुए हैं ना, हमें भगवान ने पैदा किया है यार, हम कुत्ते बिल्ली भी बन के पैदा हो सकते हैं. इंसान बनाया तो एक रीज़न से बनाया है. एंड एवरी इंडिविजुअल इज स्पेशल. एवरी इंडिविजुअल, यू नो, मेरे में हो सकता है कि खामियां हैं बहुत सारा, बट मैं स्पेशल हूँ. बट यू हैव टू बिलीव इन दैट. एंड द सपोर्ट सिस्टम हैज़ टू बी स्ट्रांग. द ओपननेस, यू हैव टू बी ओपन. ये सब एक फ्रेमवर्क हो गया. देन कम्स द प्रिपरेशन एंड एजुकेशन अबाउट इट. एंड अगेन ये है कि आपका जो गोल, और यूनिफॉर्म का गोल इतना स्ट्रांग होना चाहिए. यू वॉन्ट अर्न मच मनी देयर. इट्स ऑल अबाउट पैशन, यू नो. अगर आप कंपेयर करोगे आपके सिविल काउंटर जो इंजीनियर्स होते हैं, कंप्यूटर इंजीनियर, यू मे नॉट मेक दैट मच मनी, बट द रेस्पेक्ट यू गेट, the experience you get, the adventure you get, the exposure you get, right, these are totally you know, it is undefined. जो बोलते हैं ना, वो सिर्फ वही कर सकता है जो एक्सपीरियंस करता वहाँ से. एंड व्हेन यू जॉइन द आर्म फोर्सेस, आइदर एनी एक्सपीरियंस गुड और बैड इज एन एक्सपीरियंस, यू नो, एंड दैट मेक्स यू समथिंग डिफरेंट व्हेन यू कम आउट. सो आपकी पूरी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है. सो माई एडवाइस टू ऑल द यंगस्टर्स इज डिसाइड and decide so firmly that मुझे जाना ही जाना है. Then only you go. हाफ हार्टेड होगा बिल्कुल भी नहीं. 90% या 10% बिल्कुल भी नहीं. It has to be 100%. right. Army, Navy, Air Force is tough. It's not easy, but it is not impossible. You know, if I can go, anyone can go. Wow. That's I would like to, you know, appreciate the fact, the clarity of mind जो आपने बताया, very important. But एक चीज़ में I want to also tell कि अपॉर्चुनिटीज़, राइट, वो आपको देखनी पड़ेगी. मतलब आपको कोई हाथ में अपॉर्चुनिटी नहीं दे पाएगा, बिकॉज यू हैव हसल्ड अ लॉट एंड यू आर वेरी क्लियर कि मेरे को करना है. आई हैव टू, यू नो, ग्रैब ईच एंड एवरी अपॉर्चुनिटी. सो आप अगर बैठे हो आज, आई एम टॉकिंग टू यू, देयर इज एन अपॉर्चुनिटी. सो यू नीड टू बेसिकली बी वेरी, व्हाट इज, सबकॉन्शियसली और कॉन्शियसली दोनों, यू नीड टू आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटी एंड ग्रैब इट, यू नो, एंड देन बेसिकली बी वेरी क्लियर कि मेरे को ये करना है. Exactly. And then you will get it. So that's something which I am very sure that, you know, all the viewers will get a very good, you know, insights from you. And thank you so much. Pleasure. It was a great episode. I am very sure people are going to get highly motivated about it. And I am super inspired by you. So thank you so much. Jai Hind. Thanks for inviting Yash. And, you know, it was amazing. पता भी नहीं चला, almost 4 घंटे हो गए वहाँ पे. So see, the purpose वही है ना. It's not about me as a person, not a superhero or something. हम सबका purpose है. Our purpose is to inspire a generation, because this is going to be a record. This would be available on whatever media. आज के बाद भी, 10 साल के बाद भी YouTube वगैरह पे हमेशा रहेगा. So whenever a person कहीं से, अगर कोई भी कोने वर्ल्ड के, अगर उसको मोबाइल फ़ोन तो है आज, इंटरनेट भी है, if he or she accidentally scrolls into this, and if he or she listens to that, and that 5 minute ka motivation, if he or she derives from that, our purpose is done, you know. Right. And as a person also, I get motivated from lot of talks, lot of podcasts. I listen to podcasts left, right and center. तभी लगता है अरे यार ये नहीं किया था लाइफ में, चलो ये भी करते हैं करके, you know. So ऐसे, so that's what keep you young, and thanks to podcasters and everyone who's there.
we have a purpose to play and we have Right. a role to play. So Jai Hind, thanks Jai for Hind. inviting. थैंक यू सो मच गाइज थैंक यू टू वॉच दिस पॉडकास्ट टिल एंड. अगर आप यहाँ तक आ चुके हो तो आई एम वेरी श्योर कि आप ये पॉडकास्ट से जुड़ चुके हो और देर इज़ अ न्यूज़ फॉर यू बिकॉज यू हैव वॉच टिल एंड राइट. देर इज़ अ न्यूज़, देर इज़ अ गिव अवे अलर्ट. जो भी बंदा मुझे बता पाएगा कि बर्मुडा ट्रायंगल का एक्चुअल रहस्य क्या है विथ प्रॉपर एविडेंस in the comment section, we are going to give amazing gifts, hamper or something very special to you at your address. And the best part, we are also contributing to Army, Navy and Air Force in our own ways. अगर आप इससे जुड़ना चाहते हो, subscribe me right now. I am waiting for your interesting comments in the comment box. See you in the next episode.